भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। So we are reading from Shrimad Bhagavatam, first canto, 10th chapter, verse number 29. या वीरशुल्केन हृतः स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्बसुतादयो परा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः. The children of these ladies are Pradyumna, Samba, Amba, etc. Ladies like Rukmani, Satyabhama, Jamvati were forcibly taken by him from their Swamvara ceremony after he defeated many powerful kings headed by Shishupal, and other ladies who also forcibly taken away by him after he killed Bhaumasur and thousands of his assistants. All of these ladies are glorious. तो पिछले पिछले वर्स में वी रेड कि हस्तिनापुर में जो विमेन है छत पे खड़े होके दे आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा एंड दे आर ग्लोरीफाइंग द ग्लोरीफाइंग दोज पीपल हु आर इन कॉन्जुगल रिलेशनशिप विद कृष्णा, है ना. कह रहे हैं कि they have must have gone lot of vows, lot of fire sacrifice and all those sort of things and perfect worship of the Lord of the universe so that they become their wives. Now these women are continuing to glorify those women. तो और उनके बच्चे नाउ दे ग्लोरिफाइड द women, नाउ दे ग्लोरीफाइंग their kids, प्रद्युम्ना, सांबा, अंबा, है ना. लेडीज और जो उनकी वाइफ अभी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, है ना, दे वर ऑल टेकन अवे बाय हिम फ्रॉम देयर स्वयंवर सेरेमनी. सबको, रुक्मणी को, सत्यभामा, जामवती, सब लोगों को उन्होंने सेरेमनी से निकाल के लेके गए थे. नाउ व्हाई आर दे टॉकिंग अबाउट दिस, विल सी वेरी सुन, है ना. द कॉन्टेक्स्ट इज दे आर ग्लोरीफाइंग देयर वाइव्स. और कितने ज्यादा, और ये बच्चे भी जो प्रद्युम्न, सांबा, अंबा, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल. दे आर लाइक they must have done amazing sacrifices to become the kids. Or they, and Rukmani, Satyabhama, they're actually, they're not ordinary entities. Now let's see what Prabhupada says. Someone put message on the Yes, Prabhuji. chat. Yes, Yeah, Prabhuji. Yes, I'll do cool. that. Thank you. Who wants to read the purport? I can read the Okay. exceptionally qualified daughters of the powerful kings were allowed to make a choice of their own bridegrooms in open competition, and such ceremonies were called swayamvaras, or selecting of the bridegroom. Because the swayamvara was an open competition between the rivals and the valiant princes, such a princes were invited by the father of the princess. Such a princes were invited by the father of the princess, and usually there were regular fights between the invited princely order in a sporting spirit. But it is so happened that sometimes the belligerent prince were killed in such a marriage fighting, and the victorious prince was offered the trophy princess, for whom so many princes died. Rukmini, the principal queen of Lord Krishna, was the daughter of King Vidarbha, who wished that his qualified and beautiful daughter be given away to Lord Krishna. But her elder brother wanted her to be given away to King Shishupala, who happened to be a cousin of Krishna. So there was an open competition, and as usual, Lord Krishna emerged successfully. After harassing Shishupala and other princes by his unrivaled prowess. Rukmini had 10 sons, like Pradyumna. Therefore, were other queens also taken away by the Lord in a similar way. Full description of this beautiful booty of Lord Krishna will be given in the 10th canto. There were 16,100 beautiful girls who were daughters of many kings and were forcibly stolen by Bhamasura,
who kept them captive for his carnal desire. These girls prayed piteously to Lord Krishna for their deliverance, and the merciful Lord, called by their fervent prayers, fervent prayers, released them all by fighting and killing Bhaumasura. All these captive princesses were then accepted by the Lord as his wives. Although, in the estimation of society, they were all fallen girls. The all powerful Lord Krishna accepted the humble prayers of these girls and married them with the adoration of queens. So, altogether, Lord Krishna had 16,108 queens at Dwarka, and each of them he begot and 10 children. All these children grew up, and each had as many children as the father. The aggregate, the aggregate of the family numbered in the millions. Hare Krishna. Hare Krishna. Now, when you read these purports, like, and translation, obviously, translation mein they're talking about glories of Krishna's wives and the kids, है ना? And then purport में Srila Prabhupada starts with the tradition of Swayamvar, है ना? Where um, the bridegroom is selected by the bride, है ना? So, and then how they were selected is कोई कोई ना कोई competition होता था, and Krishna, और कई बार इन लड़ाइयों में lot of people used to die. कृष्णा भी इसी तरीके से Rukmani ko, like, when he got married to Rukmani, that's how he did. He didn't kill, and I think a lot of people died as well. But he fought with Shishupal, and he was victorious because he is supreme personality of Godhead. Now, शिला प्रभुपाद यहाँ तक तो सिर्फ हिस्ट्री बता रहे हैं, ठीक है? और फिर क्या बता रहे हैं, उन्होंने साफ साफ लिख दिया यहाँ पर कि देखो डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सारा का सारा 10th कैंटो में क्लियरली एक्सप्लेन्ड है. लेकिन आगे क्या यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए था, ये 16,100 वाइफ्स का भी है 10th चैप्टर में, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आगे जाने लगे बिकॉज ही वांटेड टू एस्टेब्लिश व्हाई कृष्णा मैरिड 16,108 वाइफ्स, बिकॉज एंड वी विल टॉक अबाउट दैट, है ना? सो दो एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाई कृष्णा, वाई, लाइक कई बार क्या बोलते हैं लोग, कहते हैं कि मैं करूं तो नहीं, कृष्णा करे तो कृष्ण लीला, और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला. व्हेन पीपल मेक दीज काइंड ऑफ कमेंट्स दे एक्चुअली डोंट नो हु कृष्णा इज, है ना? द क्वेश्चन इज व्हाई कृष्णा मैरिड so many women, why, है ना? That's a question, that question comes. और कई लोग इसको क्या करते हैं, दे बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट कृष्णा, दे टेक इट टू डिफरेंट लेवल. दैट्स वन पॉइंट Srila Prabhupada is making. There is another point that he's making, which is he's going to continue in the rest of the chapter, is the all powerful mercy of the Lord. है ना? All powerful accept Krishna accepted the humble prayers of these girls and married them. So it shows the mercy of the Lord, his merciful nature. So, um, and then Lord Krishna and each of the he got tells you these children, or for Krishna accept the humble prayers of these girls. So this is the answer of the question that I was asking. Why Krishna? 'Cause people think that sometimes Krishna was lusty and he wanted to marry so many women. No, he was marrying these girls because nobody will accept them. They were considered to be fallen girls. है ना? कहते हैं जो जिसको कोई नहीं एक्सेप्ट करता, जिसका कोई नहीं, जैसे देयर वाज अ सॉन्ग ना इन बॉलीवुड में भी, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो. एंड दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी पावरफुल सेंटेंस, दैट हु समवन हु डज नॉट हैव एनीवन, है ना, दे हैव कृष्णा. बट द ब्रिलियंट थिंग अबाउट दिस इज someone who has everyone and he doesn't have Krishna, then he has nothing. You know, he actually has nothing. If you really think about it, when you have everything, I am dealing with I'm dealing with I've got a friend who's got everything. Like he's got
He's financially extremely well off, no health issues, got amazing reputation in the society, very, very respectable person. He's got a lot of friends, big families, back in India, US, and UK. Some family in Germany. He's got everything, you know, but he has no peace of mind. He has everything. He has no peace of mind. And he asked me couple of weeks ago. He said, "Brijesh, यार अब बहुत हो गया यार. I just want peace. Just want peace." है ना. So I told him. I said, the reason why you're not peaceful is because you have everything except for the most important thing. Then I gave him an example of bird cage. है ना. मैंने कहा एक लेडी केज लेके आई, बर्ड को खाना खिलाना भूल गई और केज को संभालती रही, एंड द बर्ड डाइड. यू नो. तो मैंने कहा तेरे केस में इट इज पॉसिबल दैट द बर्ड इज रियली टायर्ड एंड हंग्री, यू नो, अबाउट टू डाई. ऑल यू हैव टू डू इज ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फीड दैट बर्ड. तो कहता है कि कैसे. तो फिर मैंने उसको बताया. मैंने कहा लुक, you need to bring Krishna in your life. I mean, Krishna is already there. You need to understand that he is there. You need to accept that he is there. एंड कहता है दैट, बोला कि तू भी औरों की जैसे मेरे को डरा रहा है ना, कि अगर मैं नहीं भगवान को मारूंगा तो भगवान विल कीप मी सैड. एंड मैंने कहा दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख, क्या होता है कि इमेजिन बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, ठीक है. अम, बारिश हो रही है और तेरे को पानी पीना है, ठीक है. और तू घर के अंदर बैठा है, घर में पानी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बाहर बारिश हो रही है फुल दबा के. यू आर थर्स्टी बट यू डोंट वांट टू स्टेप आउट. इसमें किसकी गलती है, बारिश की गलती है कि तेरी गलती है. बोले मेरी गलती है. मैंने कहा इसी तरीके से कृष्णा की मर्सी इज ड्रिपिंग फ्रॉम एवरीवेयर इन द होल यूनिवर्स. कृष्णाज मर्सी इज ड्रिपिंग एवरीवेयर. आपका जितना बड़ा कंटेनर होगा उतनी ज्यादा मर्सी आपको मिलेगी. एंड दैट कंटेनर इज व्हाट, दैट कंटेनर इज आवर हार्ट. दैट इज वाई जब हमारा हार्ट गंदा हो जाता है, उसको एक और एनालॉजी क्या दी जाती है. If our heart is like a container, it is full of all these anger, greed, envy, jealousy, pride, ego, सारी चीजों से भरा हुआ है. देन कृष्णा की मर्सी आप लेने जा रहे हो, लेकिन जगह कहाँ है ही नहीं, जगह ही नहीं है ना. सो व्हेन यू गेट इनटू डिवोशन, व्हेन वी गेट इनटू डिवोशनल सर्विस, व्हाट वी आर डूइंग इज वी ट्राइंग टू क्लीन अप दैट थिंग and accept the mercy of Krishna. Okay, so the first point that we're going to discuss is the first point we want to discuss is why Krishna had to marry those girls. Second is, and we discuss more about the merciful nature of the Lord. So the first, let's look at the first one, which is भगवान ने शादी क्यों करी. So when भगवान श्री राम was looking for Sita, then there are a lot of rishis. 16,108 ऋषिज थे. दे सॉ भगवान श्री राम इन उसमें क्या बोलते हैं, भगवा वस्त्र में. एंड ही वॉज कैरिंग बो एंड एरोज एंड ही वॉज लाइक नॉट वेयरिंग एनीथिंग, है ना, बाल बांध रखे हैं ऊपर, है ना. और and he was walking, he was so effulgent, he looked absolutely amazingly stunningly beautiful. Krishna, because he is Krishna na, and Krishna is all attractive. So there is no beauty that can compare to the beauty of Sri Ram. So these people, they are sages. They actually, in their mind, what came is, if I was a woman, I would want a husband like that. This is how beautiful Sri Ram was. So they had that desire, and because they were devotees of the Lord, Bhagwan ne bola, I will fulfill your desires, but I can't in this form because मैंने एक पत्नी व्रत लिया हुआ है. रूम में शायद. हाँ, सॉरी माता जी. नहीं सॉरी प्रभु जी, गलती से अनम्यूट हो गया. Okay, that's okay. So
वो was saying, हाँ, तो उन्होंने दे सॉ हिम एंड दे, भगवान ने बोला आई टेकन वन, एक पत्नी व्रत इस युग, इस जन्म में, बट यस आई विल कम बैक, व्हेन आई कम बैक नेक्स्ट टाइम आई विल fulfill your desire. And that desire was fulfilled in this life, where Bhaumasur kidnapped 16,108 प्रिंसेस princesses, एंड भगवान ने फिर उनको बचाया। एंड देन उन प्रिंसेस ने बोला हमें तो अभी कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि भौमासुर ने हमें कैद करके रखा था, नोबडी विल मैरी अस बिकॉज वी स्टेड इन सम अदर person's house, and they will treat us as fallen girls. And Krishna said, no, I will accept you. And Krishna married all 16,108 wives. And it is said in the scriptures in that he when he married 16,108, ऐसा नहीं है कि एक every रानी will see him in 16,108 दिन में एक बार, क्योंकि he will go to one Rani on one day, one Rani on another. No, he divided himself 16,108 and he was with each and every wife at the same time. जो वाइफ मोटी थी उनके साथ भगवान भी मोटे हो गए, जो वाइफ वाइफ छोटी थी भगवान भी छोटे हो गए, जो वाइफ लंबी थी भगवान भी लंबे हो गए, है ना। और क्योंकि और फिर भगवान ने पूरी तरीके से अपना जो धर्म होता है, गृहस्थ लाइफ का धर्म पूरा निभाया उन्होंने। और हर एक रानी से उनको 10-10 बच्चे हुए, है ना। अब 16,100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 161,000 होता है, ठीक है। अब 161,000 को अनदर, अब 161,000 में कितने बच्चे हुए, 1 मिलियन, 1,061,000 किड्स, है ना। सो 1 मिलियन, तो अब इतने इतने फैमिली थी उनकी, इतनी बड़ी फैमिली थी, है ना। सो दैट्स व्हाई श्रील प्रभुपाद सेइंग एग्रीगेट फैमिली नंबर्ड इन द मिलियंस। नो, सो नाउ वी अंडरस्टैंड दैट भगवान ने इतनी शादियां इसलिए नहीं करी बिकॉज ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वाइफ्स। एंड पहले होता था कि 3 4 5 शादियां लोग कर लेते थे बिकॉज दे वर नॉट, कई बार दासियों के साथ भी दे विल हैव किड्स, है ना। जो दासियां आती थी दहेज में, दे विल हैव किड्स विद देम एंड दोज किड्स विल बी लुक्ड आफ्टर एज ए प्रिंस। ऑब्वियसली उनको थ्रोन नहीं मिलेगा लेकिन उनको प्रिंस के जैसा रखा जाता था। उसका एग्जाम्पल कौन है, हमारे विदुर, विदुर जी। विदुर जी वॉज son of दासी, he was a दासी पुत्र, but he used to treat पांडु एंड धृतराष्ट्र एज ब्रदर, है ना, भैया ही बोलते थे। एंड देन दे विल बी लिविंग इन द सेम राजमहल, ठीक है। और बट द ओनली डिफरेंस वाज कि ही विल नेवर गेट इनटू अ थ्रोन, है ना, बस दैट वाज द ओनली डिफरेंस। सो कई बार लोगों को लगता है क्षत्रियों को ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान इज नॉट ए क्षत्रिय, भगवान इज नॉट ए वैश्य, भगवान इज ट्रांसेंडेंटल, ही इज अबव दीज मोड्स एंड ही इज अबव दिस वर्णा एंड ही इज अबव दिस आश्रम। आश्रम और वर्ण और आश्रम दोनों से परे हैं भगवान। तो भगवान ने जब 16,108 शादियां करी, दिस इज द फर्स्ट वे वी कैन लुक एट भगवान कृष्णाज मर्सी। और कई लोग क्या करते हैं, they deteriorate the Sanatan Dharma, saying that कि your God is so, he's not merciful, that's why he has created this caste system, इसीलिए भगवान के होते हुए भी सीता माँ को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और ये वो अनपीयूल पूरा का पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसी कंट्रोवर्सी से, जहाँ पर उनको यही नहीं पता है कि माता सीता का जो वो जो अग्नि परीक्षा थी उसका रेलेवेंस क्या है। दे थिंक दैट भगवान श्री राम ने बोला कि नहीं नहीं तुम रावण के पास रह के आई हो, आई डोंट बिलीव यू, मे बी यू आर नॉट चेस्ट इनफ एंड गो गो वॉक इनटू द फायर, है ना। उनको ये लगता है कि व्हाई विमन हैज टू गो थ्रू अ फायर इन ऑर्डर टू प्रूव दैट शी इज स्टिल प्योर, and even if she is not pure, what makes a husband think that they can leave a woman, and all of those kind of stupidity that now internet is posing on, because now it's a free expression. So free expression, people think that they have license to say whatever they want, and license to say whatever they think is correct, without
actually consulting the real scriptures without looking at the whole picture, just looking at one aspect of life and making decisions and making opinions, and then they're making opinion, that's okay. But what they will do is they go online, they post something, and they change the opinion of others as well. you know just a fake, completely fake news, I mean fake things. They make it up, and somebody will say, hey, was Krishna a real god, or was he a good politician, or was he a really cunning guy who wanted brothers to fight and die? He is the one who started this, and he killed 18 लोग सेना को खत्म कर दिया अकेले. So was he a cunning guy? These people are saying this because they don't understand the mercy of the Lord. They don't understand it. They don't understand who Krishna is. Krishna is who the person. Krishna is so merciful that even though people are here telling, I don't believe in God, God is dead, God is this, God created this earth and then nature took over and God has no control, so God has run away, God is now sleeping, God made this earth and he realized how stupid he was, then what he did is he just left the earth and he ran away. These are the comments online about God. And even those people who have no faith and believe in God, they still get the same sun that we get. जब बारिश होती है उन पे भी वही बारिश गिरती है जो डिवोटीज पे गिरती है ना? वो लोग भी वही फल फ्रूट खाते हैं जो भगवान ने दिए हैं, जो एक डिवोटी खाते हैं. भगवान ने अपनी तरफ से कोई मर्सी में कमी नहीं दी है. यहाँ तक कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अ, अ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च. सर्वस्य चाहम मतलब सब, एवरीबडी, आई एम सिचुएटेड इन एवरीबडीज हार्ट. सर्वस्य चाहम च अहम, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो. सबके हृदय में कौन बैठा है? मैं बैठा हूं एज परमात्मा, है ना? और फ्रॉम मी कम्स मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च. फ्रॉम मी कम्स मेमोरी, फॉरगेटफुलनेस एंड रिमेम्बरेंस, ऑल कम फ्रॉम मी. That means someone who wants to forget Krishna, Krishna actually facilitates it. कि हाँ ठीक है, you want to forget me? Here you go, I will give you tools that you will forget me. Oh, you want to hate me? Okay, that's fine. So now you will find things that will confirm that you should hate me. Like, then they will meet with people who are atheists. They will create bad name for Krishna. So Krishna facilitates them to even forget Krishna. बिना कृष्णा की मर्सी के. So this is how merciful he is. Imagine, imagine as mother, like we all are mothers and fathers, है ना? Imagine this. If if for the sake of your child, if for the betterment of your child, you can do any, for the betterment of child, we can do anything. But one thing we cannot do is this. We cannot let anybody forget them about us. कि हम लोग कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो हमारे बारे में भूल जाए, हमें भूल जाए वो बच्चे हमारे. कभी नहीं चाहेंगे, है ना? कभी चाहेंगे हम? वी विल नेवर एवर डू दैट. But Krishna is willing to do that even though he loves all of us more than millions of mothers love. Is a drop in an ocean of love of Krishna for each one of us. Not for devotees. I'm not talking about devotees. I'm talking about Hitler. God loves him as much as he loves me and you. God loves Hiranyakashipu as much as he loves anyone else. God loves Hiranyaksh. God loves Jagai and Madhai. God loves all the dacoits and all the people who, do all the horrible thing in the world. Bhagwan still loves them. This is how merciful he is. you know and हम लोग भूल जाते हैं. There is a verse in Shrimad Bhagavatam, Chaturshloki Bhagavatam, where this Chaturshloki Bhagavatam was actually recited to Brahma ji. That was the first instruction, first time जब भगवान मिले, भगवान कृष्णा, भगवान विष्णु मिले
ब्रह्मा जी से, आफ्टर ही वॉज बोर्न ऑन लोटस, भगवान ने उनको दर्शन दिए. भगवान एक्चुअली रिसाइटेड दिस चतुर्श्लोकी भागवतम. सो दिस भागवतम विच हैज 18,000 वर्सेस, they are expansion of those four verses. है ना. चतुर्श्लोकी भागवतम में भगवान, देर इज ए वर्स इन देयर विच आई थिंक इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट चतुर्श्लोकी भागवत, और सेकंड वन इज रते रतम यत प्रतीयेता, रते रतम यत प्रतीयेता ना प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायम यथा भाषो यथा थमा. भगवान कहते हैं कि एनीथिंग, मतलब इसका मीनिंग, उसका जो मर्म है, उसका जो निचोड़ वो ये है कि एनीथिंग, एनीथिंग विच इज नॉट, विच यू कांट सी इन रिलेशन टू मी, एनीथिंग यू कैन नॉट सी इन रिलेशन टू मी इज माया. सिंपल. मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरे से कनेक्टेड नहीं है ना. तो एवरीथिंग एल्स विच इज नॉट रिलेटेड टू मी इज लाइक शैडो इन द डार्कनेस. एंड दैट इज मर्सी ऑफ कृष्णा. फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उसमें टेंथ टेंथ कैंटो में वो भी बताते हैं, व्हेन जब भगवान को जब क्या बोलते हैं, हु वाज दैट, हु वाज द सिस्टर ऑफ बकासुर, बकी, पूतना. पूतना. हाँ. So Putana, when Putana came and to kill Krishna, she actually, there is a verse which says, um, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघासयापाय यदत्त साध्वी लेभेर्गतिम धातृचिताम ततोन्यम किं वा दयालुम शरणम व्रजेम. तो कह रहे, मैं भाई, आई वांट टू टेक शेल्टर शरणम, ऐसे बंदे का शेल्टर लेना चाहता हूँ जिसने बकी, मतलब बकासुर की बकासुर की सिस्टर बकी, अ, अपने स्तन में कालकूटम, कालकूट नाम का जहर लगा के आई है. उसको क्या दिया, लेभे गतिर धातृचिताम ततोन्यम. मतलब क्या बोला उसको, धात्री, धात्री का मतलब होता है दाई माँ, मदर का, मदर का दर्जा दिया उसको. वो मारने आई थी, अपना दूध पिलाया एज ए मदर, तो उन्होंने उसके प्राण खींच लिए. और जब वो, और सीधा शी वेंट टू वैकुंठा, and she, not Vaikuntha, she went to Golok Vrindavan and she got the position of a Dhatri. Kim va dayalum sharanam vraj में. Imagine, this is how दयालु है भगवान. भगवान की जो मर्सी है वो इतनी अमेजिंग है कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन. लगे जैसे नहीं दिखो आते थे there was a moment when um, Vidur invited Krishna to for lunch or dinner. खाने पे बुलाया उनको, और उसी समय दुर्योधन ने भी बुलाया. और दुर्योधन ने तो इतना गजब का सेटअप कर रखा था, 56 भोग, 108 भोग, और ये भोग और वो भोग, इतने सारी चीजें. और विदुर तो सिंपल खाना. तो विदुर ने जब बुलाया तो भगवान ने दुर्योधन का वो हटा दिया, दुर्योधन के वहां नहीं गए, विदुर के वहां गए ना. विदुरानी जो थी, विदुर की जो वाइफ थी विदुरानी, शी वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा. तो वो इतनी मेस्मराइज्ड हो गई भगवान को, तो भगवान को केला केला खिलाने के लिए लेके आई. शी वॉज पीलिंग द बनानास, और बनाना बनाना को बिन में डाल रही थी और उनको छिलका दे रही थी, एंड भगवान वॉज एक्चुअली ईटिंग दैट छिलका. है ना. इमेजिन आप और मैं कि कोई कितने भी प्यार से खिलाए. इमेजिन, इमेजिन इफ आई से, मितुल प्रभु थोड़ा सा केले का छिलका खा लो. मितुल प्रभु, आई लव यू प्रभु, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड प्रभु, एक खा लो. वी वोंट बी एबल टू ईट इट. है ना. कोई कितना भी प्यार कर ले, केले के छिलके हमें नहीं खिला सकता. बट कृष्णा एट दैट केले का छिलका, बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन, क्या वो क्या था भजन, दुर्योधन का मेवा त्यागा, साख विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई. है ना. हैव यू हर्ड दैट भजन,
दुर्योधन का मेवा त्यागा, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सो भगवान भावग्रही हैं, तो वो भगवान ने क्या करा, विदुर रानी के हाथ से केले के छिलके खा लिए और 56 भोग छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि भगवान इज नॉट इंटरेस्टेड इन आर ऑपुलेंस। हमें लगता है भगवान को ये कर दें, भगवान को वो दे दें। भगवान इज आफ्टर आर लव, है ना। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, अगर हम सुबह सिर्फ बैठ के चैंटिंग ढंग से कर लेना, मतलब ध्यान लगा के भगवान में, भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। आई मीन दिस इज हाउ मर्सीफुल एंड दिस इज हाउ इजीली ही इज प्लीज्ड, है ना। आपको पता है देर इज ए, हम लोग वी वर डिस्कसिंग महिमा ऑफ चैंटिंग, है ना। तो आप लोग सब लोग तो चैंटिंग कर ही रहे हो, तो आई कैन इजली टॉक अबाउट इट। चैंटिंग की इतनी महिमा है कि हम लोग पूरा मंत्र तो छोड़ो, जब हम बोलते हैं ना ह, अगर हम किसी को गाली भी दे रहे हैं ना, ह वाली गाली, है ना, हरा हरा वाली गाली भी दे रहे हैं, तो भगवान उस हरा हरा का ह निकाल के वो ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये मेरा नाम लेने की कोशिश कर रहा है, उसमें ही मर्सी दे देते हैं। ठीक है। देर वॉज ए देर वॉज ए इंसिडेंट वेयर, हमारे आचार्य बताते हैं कि एक मुसलमान था, है ना। मुसलमान वॉज, पहले तो क्या होता था कि खेतों में जाके दे यूज्ड टू डू नंबर 2, है ना, खेतों में बैठा था वो। एंड देन सडनली ही वॉज अ वेरी 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 पायस मौलाना, है ना। तो क्या हुआ, एक जंगली सुअर आया, एंड जंगली सुअर हिट हिम बहुत बुरी तरीके से, एंड ही सॉ देयर वाज अ जंगली सुअर, एंड देन बिकॉज पिग्स आर हराम, तो उनके मुंह से निकला हराम, है ना। ही वॉज नॉट सेइंग राम, ही वॉज सेइंग हराम। जैसे ही उसने हराम बोला, he died and he went back home, back to Godhead. You know why? Because God took Ram out of Haram. है ना? This is how merciful he is. He is actually willing to do anything and everything for us to go back home, back to Godhead. And that is his mercy. और हम लोगों को क्या लगता है कि भगवान जो है, ही, सम पीपल थिंक दैट गॉड इज दिस गाय, मीन गाय, सिटिंग ऑन द थ्रोन विद हिज लिटिल क्लब इन हिज हैंड, एंड चक्र, शंख चक्र गदा पद्म लेके खड़ बैठे हुए हैं किसी सिंहासन पे, एंड ही इज रेडी टू पाउंस ऑन एनीवन हु डज मेक्स ए मिस्टेक, है ना। बट दैट इज नॉट ट्रू। भगवान इज on a he is not a punishing god, he is a loving god. And when he does punish, when he gives punishment, is actually not a real punishment. You know what it is? It is actually a mercy. तभी कहते हैं कि when we go and ask Krishna, Krishna please 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 please, या मेरे को ना, आई वांट टू अर्न $200,000 a month, please please help me earn $200,000 a month, I really want to get 200,000. एंड अगर कृष्णा को लगता है कि भैया इसको मैं 200,000 a month दे दिया, तो सबसे पहले इसकी माला छूट जानी है। तो कृष्णा क्या करेगा? कृष्णा नहीं देंगे 200,000, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे कृष्णा? वो जो डिजायर है, वो जो मेरी डिजायर है 200,000 अ मंथ कमाने की, उसको प्यूरिफाई कर देंगे। हाउ? they because he is a kind, because and the only way he will do it is, he will not do it कि यार है चमत्कार कर दिया कि हाँ अरे ब्रिजेश बोल रहा है, he is a very important person, let's give him. No, no, no. He will say, okay, this Vishnu Priya Das, he has a desire to earn $200,000 a month, है ना, and I and God knows whether it is beneficial for me or not. If he thinks कि भैया मैं इसको दूंगा तो ये अपनी भक्ति छोड़ देगा, तो God will not give it to me, है ना। एंड नो मैटर हाउ मच आई प्रे, बट वो क्या करेंगे, एंड इवेंचुअली व्हेन ही गिव्स इट टू मी, by that time my desires will be purified. Then if I'm earning $200,000 a month, I will be utilizing that money, that platform, in the service of the Lord, and that transformation of हमारी खुद की desire is also mercy of God, है ना। ही इज लाइक ए फादर, जिससे आप सिगरेट मांगोगे तो वो नहीं देगा, है ना। ही विल नॉट गिव अस सिगरेट बिकॉज ही इज सुप्रीम फादर। उनको पता है हमारे लिए सही नहीं है।
और कई बार लोग बोलते हैं ना कि नहीं पापा, मेरे को सारे दोस्त मसूरी नैनीताल जा रहे हैं, मेरे को भी जाना है उनके साथ, एंड यू नो दैट जिनके साथ ही जाने को बोल रहा है दे आर नॉट गुड पीपल, देन पापा विल से लुक, यू नो, डू यू वांट टू गो मसूरी नैनीताल, आई विल गो विद यू विद योर फ्रेंड्स ताकि आई कैन, यू नो, आई कैन सपोर्ट यू, है ना। और ही विल से लुक, उनको जाने दे, आई विल टेक यू टू स्विट्जरलैंड, बट यू गो विद मी एंड मम्मा, है ना। एंड सडनली यू से, ओह, नैनीताल से अच्छा स्विट्जरलैंड, ओके लेट्स लेट्स गो स्विट्जरलैंड। तो सडनली क्या हुआ कि फादर फादर ने क्या करा, फादर ने उनकी जो डिजायर थी नैनीताल जाने की, वो छोड़ खत्म कर दी, क्योंकि अच्छी बड़ी डिजायर दे दी। इसी तरीके से व्हेन कृष्णा गिव्स अस दिस, व्हाट इज ही डूइंग, हमारे दिमाग में आ रहा है हमें $200,000 मिल जाए, और भगवान क्या करेंगे कि बाय द टाइम आई गेट $200,000, I will be doing such an amazing chanting and all those sort of things that वो 200,000 जब मेरे पास आएगा, that will not be able to do any damage to my bhakti, है ना। कई बार क्या होता है, एक बार क्या हुआ, one day I I was मैंने मेरे को ना, I wanted to get a promotion where I was going to लीड द प्रोजेक्ट नेशनली, लाइक यू नो, वो एक प्रोजेक्ट था जिसको मेरे को नेशनल लीड करना था। So I had a very strong desire. If I had to do it nationally, then I'll be the head of that, the whole thing. Like everybody will be reporting to me, and I wanted that kind of a responsibility. Not, I'm not a power hungry, तो मैं किसी पे ज़्यादा वो करता नहीं हूँ, ना। I'm not a very strict boss or anything like that. तो मेरा वो तो मतलब नहीं था कि रौब जमाऊंगा लोगों पे, but I wanted to have that responsibility so that, you know, मेरे को लगा मैं किसी और को बता सकता हूँ कि I'm the head, like, you know. So, and I really desperately wanted it. Then somehow I did not realize that I was not ready for it. ठीक है? So, and then I was thinking, यार, I have all the qualification, I've got everything, I've got मेरे results भी ऐसे हैं, and I'm the only candidate who is fit to do it, है ना? Then you know what Krishna did? Krishna, and I prayed to Krishna. I said, Krishna, I don't know why you're not giving me this. But if my bhakti is gonna get impacted, I don't want it, because I don't want my bhakti to be impacted. But if my bhakti is not gonna get impacted, give it to me. I'm gonna spend the same amount of hours doing, you know, my work anyway. Then following week, I got a role, secondment. जिस रोल के लिए मैंने अप्लाई करा था उसी का इक्वलेंट रोल दूसरे डिपार्टमेंट में आया, and there was a seconded role. Somebody was going away for 6 months and they wanted me to step into that role. तो मैंने मैंने कर लिया ज्वाइन। and I realized what a nightmare that was. उसमें क्या हुआ, the first thing I realized that power, when people get power, it comes with great powers, comes with great responsibilities, ठीक है। I had power for million, couple of $1 million a quarter का मेरे पास पावर थी, ठीक है, कि आई कैन, दिस वाज माय बजट। एंड बिकॉज ऑफ दिस आई स्टार्टेड ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली, एंड आई मीन आप लोगों को लगता होगा कि नहीं नहीं ब्रिज प्रभु ऐसा नहीं कर सकते, बट आई एक्चुअली डिड, बिकॉज आई वॉज इन चार्ज ऑफ दिस, एंड वेन पीपल यूज टू कम टू आस्क मी फॉर सम बजट हेयर एंड देयर, आई स्टार्टेड ट्रीटिंग देम डिफरेंटली, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था कि यार नहीं, इसको नहीं दूंगा, बिकॉज यू नो this person hasn't spoken to me properly, so I won't give this budget to this department, क्योंकि मेरे अंडर काफी सारे डिपार्टमेंट आ गए थे। एंड प्रॉब्लम क्या हुई, बाय द टाइम कपल ऑफ मंथ्स निकले, आई स्टार्टेड मॉनिटरिंग दिस, कि यार ये क्या हो रहा है मेरे अंदर, व्हाई एम आई ट्रीटिंग दिस पर्सन not nicely and this person nicely, because this person is talking the truth but he's not using, he's not nice to me. Just because he or she is not nice to me, I can't say no to this guy, because the money that they're asking is logic. But this guy on the other hand, he is talking really nicely to me, he's giving me all the respect, but the money that he's wanting for is rubbish. Like, I know that that's not a logical expenditure, in the sense that I don't want to spend my money on that kind of direction. Then I realized that because I had this power, um,
I started looking at people differently, and the project that I wanted, that was around 10 times bigger than this project. Imagine my consciousness, what would have happened to my consciousness prematurely, you know. So God gave me 6 months of head start, saying that Brijesh, अपनी औकात समझो पहले. Know where you are. Know yourself. Find out. You think you are an amazing person. You're doing bhakti. You're doing all of these things. But is this bhakti taking the thing out of in your heart from your heart where you become non-judgmental? If yes, then that kudos. If no, then you need to work more. Then I realized that I was still judging people based on how they are treating me, not based on their merits, not based on the ideas of their merits, a merit of their ideas, and all those sort of things. And I realized that अगर मैं उसमें चला जाता, I would, क्योंकि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, I would not even have time to self reflect. अभी तो मेरे पास टाइम था सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का, और मेरे पास 6 महीने का ही काम था. सो एवरीथिंग वॉज गिवन टू मी ऑन अ प्लेटर, and because the person who's going to come back, I have to just manage it for 6 months and give it back. यहाँ पर क्या था, अगर मैं यहाँ पर मेरे को मिल जाता, there was no one giving me in the platter. Brand new project, I had to scratch से start करना पड़ता, मेरे को नहीं मिलता समय. So and I realized my immaturity got shown to me in magnifying glass by Krishna through not giving me what I wanted. So Krishna purified my desire, and then when I got into this other thing around a year later, then I was really prepared. I knew that I can't trust my mind because my mind is still not in my control. So what I did is I increased my sadhana, I increased, then I got a mentor who can actually keep me intact, and I told them my mistake last time, all those sort of things. और कहाँ से आया, ये भगवान ने करवाया. Now this is the mercy of the Lord as well, because Lord did not give me what I wanted, even though I thought that I deserved it, because I was not matured. है ना. Now this, and I remember I was sitting on that, and how did I get that message, आपको ये भी बताता हूँ, and this is a mercy of Lord as well. So I was sitting there and I was thinking कि यार नहीं नहीं, I'm ready kind of stuff, like, I will be able to take care of the next project, ऐसे सोच रहा था मैं. And suddenly I thought, I will play Srila Prabhupada's एक कथामृता करके एक ऐप है मेरे उसमें. सो आई पुट दैट ऐप ऑन, उसमें शिला प्रभुपाद का लेक्चर चल रहा था. शिला प्रभुपाद वाज टॉकिंग अबाउट मॉथ, एक्चुअली हाउ मॉथ से जो बटरफ्लाई बनता है वो कैसे बनता है, कुकून. सो इट बिल्ड्स अ कुकून अराउंड इट, कुकून बनता है, फिर वो कुकून के अंदर क्या होता है, वो पकता रहता है, देन ही विंग्स बनते हैं उसके, सब कुछ बनता है. फिर क्या करता है वो, ऐसे ना अपने पंखों से, दैट मॉथ ब्रेक्स द कोकून थ्रू, अपने उससे, अपने विंग से. तो क्या हुआ कि वन डे somebody was thinking, oh my goodness, look, this butterfly inside this cocoon is struggling, let me help this butterfly. तो उसने ब्लेड लेके उस cocoon को ऐसे काट दिया. अब 2-3 बार पंख फड़फड़ाया उसने, वो बाहर आ गया, वो बटरफ्लाई बाहर आ गई. जैसे ही बाहर आई, it just fell flop on the ground and died. The reason why, because the exercise that she was about to get through breaking the cocoon would have strengthened her wings. And वो जो wings थे, that उसमें strength आएगी, और उस strength से she can fly. Now someone has gotten rid of that thing. अब आपके पंख तो बड़े हुए नहीं है, आप कैसे उड़ोगे? So when God is not letting you fly, it's because your wings are not strong enough right now. हमारे साथ क्या होता है, we want God's mercy. हम सबको चाहिए mercy, but we want mercy right now. But mercy does not mean that you will get whatever you want and whenever you want. Because God अगर एक एक तितली को कोकून से बाहर नहीं निकलने देता है जब तक उसके विंग्स नहीं स्ट्रांग होते, तब तक वो हमें कैसे दे सकते हैं? वी नीड टू बी रेडी फॉर इट एज वेल. क्योंकि if we are asking Lord something na, and if it's got something to do with materialistic thing, you just pray to the Lord.
only if you so desire. Krishna, I want to earn $200,000 a month. Please help me create something where I can peacefully, happily, piously earn $200,000 a month if you so desire without me compromising on my sadhana. And if you can actually pray like that, then there is a possibility that, God will, God is always merciful anyway. So he will actually look after you. But the thing is, we have to understand कि हमें क्या लगता है, we want भगवान की मर्सी में हमें क्या चाहिए, हम भगवान को कहते हैं, भगवान हमें मर्सी चाहिए, प्लीज गिव मी माई मर्सी, बट गिव मी ऑन माई टर्म्स। तो अभी मैं अपनी भक्ति रक्षा में भी बता रहा था, इसका मतलब ऐसा हो गया कि हम लोग भगवान को बोलते हैं, भगवान देखो, ये मेरी डिमांड है, ठीक है, और आप हो सुप्रीम पावरफुल, ठीक है, लेकिन मैं हूं सुप्रीम इंटेलिजेंट, आप नहीं हो सुप्रीम इंटेलिजेंट, सो आप अपना दिमाग मत लगाओ, आप अपनी सिर्फ पावर लगाओ, दिमाग मेरा यूज करो, क्योंकि मेरे को आपसे ज्यादा पता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ $200,000 अ मंथ मैं के हैंडल कर लूंगा, आप दे दो, बाकी देखी जाएगी, है ना। दिस इज वॉट वी थिंक गॉड इज पावरफुल बट नॉट इंटेलिजेंट, है ना। बट गॉड इज सुप्रीमली इंटेलिजेंट, गॉड इज सुप्रीम इन एवरीथिंग, सो ही नोज वॉट यू वॉन्ट, he's powerful enough to give you what you want, but he will only give you if he thinks it's right for you. अब ये मैंने सेंटेंस बोल दिया, एंड somebody will, सब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा, ओ इसका मतलब कि कि आई कैन आस्क एनीथिंग, आई शुड बी एबल टू गेट एनीथिंग, या भगवान की इच्छा हो तो। यस, भगवान की इच्छा से सब कुछ मिलता है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान लेट अस गेट आर कार्मिक रिएक्शन एज वेल। भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज योर थिंग, सो यू हैव टू डू कर्मा, ठीक है। उस कर्म के, सपोज आपने ऐसा कर्म करा है कि आपके $200,000 अ मंथ आपकी सैलरी होनी चाहिए कर्म के हिसाब से, even that does not guarantee you will get it. You know why? Because there is one thing called karmana and another thing called daivanetrena. You need the mercy of the Lord in order to, for your karma to get falibhoot, क्योंकि all the results of the karma is actually sanctioned by the Paramatma, है ना। they cannot, and if someone is going through trouble, problems, God has sanctioned those problems as well. अब कोई बोलेगा कि यार दिस इज रॉन्ग, भगवान क्यों दे रहे हैं हमें प्रॉब्लम, भगवान नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली भगवान सैंक्शन कर रहे हैं, दे तो हम लोग खुद ही रहे, वी हैव डन आवर कर्मा, हम लोगों ने ही अपने आप को, जैसे कह रहे हैं ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद ही चाकू यहाँ से लाके अपने हाथ में घोप रहा हूँ, है ना, आई एम डूइंग इट माई सेल्फ, है ना। भगवान इज जस्ट सेइंग ओके, डू इट एज पर योर कर्मा, ठीक है। लेकिन when we get into devotional service, when we become serious in bhakti, one of the things that happens is Krishna will take control of your karma as well. So what he will do is, suppose मैंने कोई कर्म ऐसा करा है कि मेरा पूरा हाथ कटने वाला है, तो क्या होगा, बिकॉज आई मीन डूइंग डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, दैट कर्मा विल बी जस्ट अ स्मॉल कट ऑन माई फिंगर, है ना, एंड इट विल बी पेड ऑफ, बिकॉज कृष्णा, एंड बट कोई बोलेगा अच्छा कृष्णा फिर कट भी क्यों लगाते हैं, कट भी नहीं लगना चाहिए, अरे कट तो लगना पड़ेगा, इसको कहते हैं टोकन, है ना। अगर ये टोकन भी नहीं लगेगा ना, तो हम कल से अपनी माला छोड़ देंगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है ऐसा, कि जब सब कुछ हंकी डोरी चलने लग जाता है ना, तो सबसे पहले जो सबसे सबसे ज्यादा डिक्लाइन क्या होता है, हमारी चैंटिंग, चैंटिंग की क्वालिटी एक्चुअली, एंड आई हैव सीन इन माई सेल्फ। सो एक भगवान टोकन इसलिए रखते हैं कि यार कम से कम तुम ना इसको ग्रांटेड ना लो, है ना। अभी सपोज मंदिर में बढ़िया बढ़िया चल रहा है, 16 माला रोज हो रही है, 1-1.5 घंटा श्रीमद् भागवतम की पढ़ाई भी हो रही है, इस मंदिर के लेक्चर भी सुने जा रहे हैं, उसके अलावा हम लोग सैटरडे संडे को मंदिर भी जा रहे हैं, और भागवतम क्लास भी सुन रहे हैं, और भक्ति वृक्षा में भी जा रहे हैं, और सेवा भी कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वाह मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब धीरे धीरे जब आपको जब देन यू विल स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स फॉर मजा, है ना। भक्ति वृक्षा में क्यों जाना, अरे मजा आ जाता है, मजा तो आता है, लेकिन क्या मिलता क्या है, अरे मिलता तो पता नहीं, लेकिन मजा आ जाता है, अरे मजा आता है, लाइक व्हाट इज योर ग्रोथ इन भक्ति रक्षा,
ग्रोथ का पता नहीं लेकिन मजा आता है। अरे मजे, व्हेन पीपल स्टार्ट गोइंग टू भक्ति वृक्षा फॉर मजा, दैट्स व्हेन द डाउनफॉल स्टार्ट्स, क्योंकि क्या, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, है ना। नाउ व्हाट विल हैपन इज कृष्णा विल से, यू नो व्हाट, यू आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, लेट मी टेक वन थिंग अवे फ्रॉम यू, ना, एक छोटी चीज अलग ले लेंगे, एंड सडनली व्हेन दैट थिंग गोज अवे, देन यू रियलाइज, ओ भगवान प्लीज माफ कर दो, यू नो। एंड दैट प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, दैट द प्रॉब्लम दैट वी फेस in our life is actually a mercy of Krishna, because those problems are gonna take us क्लोजर टू कृष्णा, है ना। एंड जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं ये प्रे कर रहा हूँ अंदर, भगवान मेरे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवतम कहता है, तो आप मेरे को मत देना प्रॉब्लम की, ये इसको बड़ी प्रॉब्लम चाहिए ना, तेरे को बड़ा क्लोज जाना है भगवान की, ये ले प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं, मेरे को आप ये समझ के दो, अगर आपको मुझे कोई प्रॉब्लम देनी है ना, तो देर वॉज ए भजन हमारी मम्मी बचपन में लगाती थी, जितने चाहे दुख दे ले, भगवान को बोल रहे हैं कोई लेडी, जितने चाहे दुख दे ले पर दुख सहने की शक्ति दे, सहारा ले मेरे मन भगवान का, क्या जाने कब साथ कोई छोड़ दे। दैट वाज ए कोई मूवी का भजन था। बट वो मेरे को याद आया कि यू नो, भगवान ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में आएंगी, आई हैव डन कर्मास, तो मेरे को भुगतने पड़ेंगे इस जन्म के, पुराने जन्म के, जो भी है, वट एवर इट इज। बट भगवान फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि यार व्हेन आई एम गोइंग थ्रू दीज ट्रबल्स, प्लीज लेट मी होल्ड ऑन टू योर फीट टाइटली, मोर टाइटली देन आई एम होल्डिंग राइट नाउ, यू नो। तो सबसे पहले क्या होता है, व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग रियली वेल ना, सबसे पहली चीज क्या आती है, वी बिकम अहंकारी, वी बिकम प्राउड। तो कोई आके हमें तकलीफ बताता है, प्रभु जिंदगी बड़ी बेकार चल रही है, बता अरे पागल है क्या, ये ले 16 माला कर, एवरीथिंग विल बी ओके। अरे भाई नहीं, मेरे साथ ये, अरे तुम तो यार, यू आर अ वेरी इमेच्योर्ड पर्सन। कि हम उसको इमेच्योर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम उसकी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बोले मेरे पास नहीं है तो तेरे पास कैसे हो सकती है ना। तभी तो कई बार क्या होता है, somebody who is depressed, some other person will say, how can you be depressed, why just get up and walk, गेट अप एंड गो एंड प्ले। अरे भैया वो डिप्रेशन में है। नो 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 नो, हाउ कैन यू बी डिप्रेस, सब आपके हाथ में है, सब आपकी विल पावर पे गेट यू। अरे विल पावर कोई वो स्विच थोड़े है जो बटन दबा दिया और विल पावर आ गई, है ना। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, इफ समवन इज गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड, दैट मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है ना, जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, अगर वही सिमिलर प्रॉब्लम कोई लेके आता है मेरे पास, देन I can relate to that, and I will not judge that person, and I will not feel proud of myself, and I will be able to humanly help, and with humility I can help that person. Not help in the sense कि मैं उसको कुछ, but I can help them to share their ideas. I can help them मेरी journey कैसे रही, I can help them to अपने to open up, है ना। तो क्या होगा, I can give them some sort of solace in their life। और अगर मेरे इस लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं आई हुई है, देन आई विल नेवर बी एबल टू रिलेट। यार कैसे यार, ऐसे कैसे हो सकता है, दिस इज योर फॉल्ट। अरे यार भाई वो ही इज जेन्युइन, इसको जेन्युइन प्रॉब्लम। इसीलिए भगवान हम लोगों को जब तकलीफें देता है, टेक इट एज ए बिग मर्सी। भगवान बहुत सारी चीज़ें दे रहा है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहा है, अच्छी जॉब दे रहा है, अच्छा घर दे रहा है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा हस्बैंड है, अच्छी वाइफ है ना, अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे डिवोटीज हैं, सब कुछ दे रहा है, बी ग्रेटफुल, है ना, बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, है ना। बट एट द सेम टाइम्स, जब वो इतना सब कुछ अच्छा दे रहा है, साथ में अगर आपको आपकी सास की दो बातें सुननी पड़ जाती हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। सास आपको दो बातें सुना दी है आपने, आपको 15-20 चीजें अच्छी मिल गई है, दो बातें आपको सास ने सुना दी, सुन लो यार। टेक इट, टेक इट, बिकॉज दैट दो दो बातें आपको सास के थ्रू जो मिल रही है, दैट इज देयर टू गिव यू ह्यूमिलिटी एज वेल। Same thing with friends. Sometimes some friends will come and they will treat you like really bad. Like, you don't have to stay in that relationship like that. But sometimes you have to understand that these people are there to make us humble. The most important people in our life, they would make us humble is, tell me, who are the most important people in our life? They will definitely make us humble. कोई बता सकता है? Have a guess. Who will make us 100% humble? हमारा दुश्मन। वो तो करेगा ही, और बताओ। हमारे बच्चे प्रभु। यस, योर किड्स। आई एम टेलिंग यू, नो मैटर हु यू आर,
योर किड्स आर गना हम्बल यू। लेकिन क्या पता, एक एक चीज बताऊं, इफ यू आर ऑलरेडी हम्बल ना, देन जो कर्मा आपके बच्चों के थ्रू आपके पास आने वाला है ना, वो नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी हम्बल हो। हमारे कार्मिक रिएक्शन क्यों आता है पता है? हमारे कार्मिक रिएक्शन हमारे अंदर एक एटीट्यूड, हमारे अंदर एक चेंज लाने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को चोरी का सबक सिखाना है, ठीक है? अगर किसी को सपोज किसी के किसी के जैसे कई बार किसी की जन्मपत्री में लिखा होता है ना, इसको जेल जाना पड़ेगा, जिसकी जन्मपत्री में लिखा है जेल की रोटी मिलेगी इसको। तो अगर वो जाके जेलर के पास जाए, बोले यार एक काम करो ना, आपके जेल में जो रोटी पकती है उसमें से दो चार रोटियां मेरे को दे दो रोज। तो वो अगर वो जेल की रोटी बाहर बैठे बैठे ही खा रहा है ना, तो अब उसके जो कार्मिक रिएक्शन में था जेल की रोटी खाने का, वो ऑलरेडी पूरा हो गया है। अब उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा। मतलब दिस इज जस्ट जस्ट ए सेइंग व्हाट आई एम सेइंग। बट कार्मिक रिएक्शन कम्स टू टू मेक अस टू चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। अगर हम लोग हमारे कार्मिक रिएक्शन आने से पहले अपना एटीट्यूड चेंज कर लें, तो वी डोंट हैव टू गो थ्रू दैट कार्मिक रिएक्शन इन दैट रेस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग पहले से ही हम्बल बन गए, तो जो कर्मा हमारे बच्चे हमें हम्बल बनाने के लिए करने वाले थे, वो नहीं करेंगे वो। दे विल बी ओके, सो यू वोंट हैव टू फेस दैट। बट हमारे लाइफ में हमारे टीचर्स, हमारे कोचेस, हमारे फ्रेंड्स, हमारे भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप और सास ससुर, है ना, ये सारे के सारे लोग, दे आर हेयर specifically positioned for us, because to give us something that we lack right now. If I lack love in my life right now, then Krishna will introduce someone who can give me that love. If I have lack of compassion, then Krishna will do something where I lose something so that I can easily be compassionate to other people. You know, I never understood, before that, I never understood how people, um, how people can be so careless to make so many mistakes at work, है ना? मेरे को कभी समझ में नहीं आया। Then I realized I had my first son, and मैं बता रहा हूँ कि 2 महीने की छुट्टी थी, पेरेंटल लीव थी, उसके बाद मैं ऑफिस गया। आई वॉज मेकिंग मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, एंड बिकॉज मेरा आधा दिमाग वहीं घर पे लगा रहता था कि ये रॉक्सी को ये चाहिए, नारायण को ये चाहिए, ये भी नहीं करा, वो भी नहीं करा, मम्मी नहीं आ पा रही है, ये है वो है, रॉक्सी की तबीयत ठीक नहीं है, बेटा बीमार हो रहा है, ये है, उसको एक बार एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाने लगे। मतलब आई मेड सो मेनी मिस्टेक्स, and after that till now I'm okay, because somebody makes mistake, I understand. Now I'm more compassion for people who are going through pregnancies, and they're going through kids, they're raising kids. I have more compassion for them because I have gone through it. So sometimes God gives you those miseries for you to be able to understand what's going on around, and you can actually accept people for who they are. And that is why, that is the merciful nature of Krishna. That is the merciful nature of Krishna, where Krishna is totally dedicated to give us everything that we need, every tool we need, every sanity we need to go back home, back to Godhead. And He does that through a lot of people around us. Even Kaibar, there was one of the devotees got bitten by a dog. है ना? Now, got bitten by a dog, rabies का इंजेक्शन लगे. And before that, he used to tease his wife कि क्या है, तो सुई से डरती रहती है, ये है वो, कुछ नहीं है, तो तेरा ना नौटंकी करती है। जब 14 इंजेक्शन लगे ना पेट में, खैर कब तो 3 ही लगते हैं, 3 इंजेक्शन लगे ना पेट में, तो सब उसको समझ में आ गया। अपनी वाइफ को बोलता, आई एम सो सॉरी, मैं तेरा कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा, है ना? तो अब आप सोचो, व्हाई डिड दैट हैपन? बिकॉज एवरीथिंग कृष्णा ऑर्केस्ट्रेट फॉर अस टू गो बैक, बट वी नीड टू लुक एट इट लाइक दैट. We can't look at situations, oh my goodness, always complaining. ये भी ठीक नहीं चल रहा है, वो भी ठीक नहीं चल रहा है. When you're complaining, what we are doing is we are actually not looking at Krishna's mercy. We are looking at everything as Krishna's issues. है ना? हम कि भी कृष्णा ने करा है, कृष्णा ने करा है. और कई बार हमें लगता है, नहीं नहीं, कृष्णा तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरी वाइफ में प्रॉब्लम है. कृष्णा तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरा हस्बैंड ही ऐसा ही है. कृष्णा तो बहुत अच्छा है, मेरे फ्रेंड्स ही ऐसे ही हैं. अरे भैया, वो कृष्णा ने ही भिजवाए हैं आपको सुधारने के लिए. सो दे आर देयर फॉर यू, है ना?
They are not there so that you can complain about them. They are there so that you can learn and you can move on in your life and get better as a human every single day. हमारे पास every day opportunity होती है कि we can be a better person the way we were yesterday. Today I had a little argument with one of my friend, and and suddenly like within a second जैसे ही मैं उसको बोल रहा था मैंने कहा यार don't talk to me like that. I just said that to him and I realized my goodness, I am saying that like I'm getting angry at my friend, so don't talk to me. Why am I taking that personally? Because that was my ego coming in. Why is talking to me like that? That was my ego. He's my friend. Like he knows me for since 2003, so he's my friend. Like 18 साल की दोस्ती है. So if he's saying that, instead of me reacting to it, I should be thinking, why is he saying why what is he going through that he's talking to me like this? Like, what he must be going through. पहले मैं ऐसे ही था, लेकिन अभी क्या है, when things are going differently, थोड़ी थोड़ी ego आती है ना. Now I'm more aware of, oh, this is my ego saying, oh, why, how can he talk to me like that? Where is it coming from? Because I still have that part of ego in me, and God has put my friend in my life, that friend who will come and talk to me like this, so that I can start addressing that issue that I have with my ego. That doesn't mean that we don't do self love. That doesn't mean we don't stand up for ourselves. That doesn't mean that we are always, oh, whatever you say I'm okay with it. No, 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 you have to stand up for yourself. You need to know what you want and all those sort of things. But look at the end of the day, look at everything as orchestrated by Krishna, because he is supremely merciful. He is not small merciful, he is not big merciful, he is supremely merciful. His mercy is there in every aspect of our life. We just have to open our eyes and look at it. We'll stop here. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. I'm so sorry, I just didn't realize what time it is. I had few more points, but no, maybe next class. Okay, I'll share that bhajan, the one that I was talking about. I'll find it on YouTube and I'll share it. Anybody has any comments, anything that anybody wants to share or raise or ask? Probably I have to share something, but it's gonna take some time, so better I'll share in the next class. Okay, okay. Anybody has any question? Okay. Thank you. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. और मिथुल प्रभु will give the class on Monday, from Monday. Yes, Monday. Yeah, cool. Richa Mataji bhi hai. Oh, you're joining from oh, is it, Canberra, Prabhu. where are you joining from? Canberra. Oh, wow, you're still there. Okay, I Yeah. thought you must be back. Coming back on Wednesday, Prabhu. Okay, okay, okay. Very nice, very nice. Good to see you. Good to have you in the class. चलो say Hare Krishna. Hare, Hare Hare Krishna, Adya. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. All right. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai. जय Prabhupada ki jai. जय Hare Krishna. Hare Prabhuji, Hare Krishna. हरि Hare बोल. Krishna. Thank you. Hare Krishna.